Aspirants and welcome back to our channel. Today we'll discuss the Hindu analysis dated 1st September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that call for green corridors, floating water drones. NCR board directs environmental monitoring be carried out regularly. Now, what is this article related to? So, our NCR region has made a proper plan which is called as NCR plan of 2041. We'll further see what does this plans means. So under this plans, their main we can say goal or their aims are to conserve the environment or to make it a green corridor, is basically to conserve the species and the environment or the water of their region. So under that initiative or under that plan, and NCR region has taken certain steps such as biogas plants and Yamuna pollution related plans. So first we'll see about the draft regional. So the draft region plan of 2041 for NCR region, okay, has made several recommendation towards protecting the environment, monitoring like increasing of water flow in Yamuna, because NCR region, if we speak, the main water reservoir is Yamuna river there. So improving the inflow of water Yamuna, then green corridor along the roads and along the road is basically like the highways or we can say the main roads. So uske dono sides mein having proper green plants or trees. Then it is also talking about the floating water drones to clean river among the others. So the new thing that is used here is the floating water drone. We'll see how it is used or why it is used. So they have taken certain initiative under this plan or under this draft to save the environment. The सबसे first वाला plan is biogas प्लांट. नाउ बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें, एनसीआर रीजन और मतलब हमारा राजस्थान हो गया, हमारा गुजरात नहीं, राजस्थान है, हरियाणा है, द एनसीआर रीजन है, ये सब जो एरियाज़ है, इधर मेन पोल्यूशन रीजन जो होता है वो है स्टबल बर्निंग. ठीक है, स्टबल बर्निंग का हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा भी था कि क्यों कर रहे हैं एंड क्या इफेक्ट्स हो रहा है. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायोगैस प्लांट में व्हाट दे हैव सेड कि दे विल जनरेट, और जो क्रॉप की रेसिड्यूज़ हैं उससे वो लोग बायोगैस जनरेट करने की कोशिश करेंगे. So the draft report said that for better utilization of crop residue generated in NCR, biogas plants for managing the crops residue should be adopted. Is basically they will use the stubble, they will use the waste of the crops to generate the biogas. It is estimated that the industrial biogas plants can generate about 5,000 cubic meter of biogas per day. क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस पर डे उतने का प्रोडक्शन कर सकता है इफ़ वी विल यूज़ दैट क्रॉप का रेसिड्यूज. ठीक है, स्मॉल फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स कैन जनरेट 1 to 10 meters ऑफ बायोगैस, 1 to 10 meters ऑफ बायोगैस क्यूबिक मीटर एवरी डे पर डे. ठीक है, सो अगर हम इंडस्ट्रियल बेसिस पे देखें तो 5,000 क्यूबिक मीटर है, और स्मॉल फैमिली के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज़ 1 to 10 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस जनरेट या प्रोड्यूस हो सकता है. ये हो गया हमारा बायोगैस. उसके बाद दूसरा आता है हमारा ग्रीन कॉरिडोर, जिसके बारे में हमने देखा था. सो ग्रीन कॉरिडोर में क्या करेंगे, या फिर हम ट्री बैरियर्स इस बेसिकली क्यों लगा रहे हैं, तो जितने भी रोड्स होंगे, जो भी रोड्स के आजू बाजू में अगर ग्रीन कॉरिडोर्स बना रहे हैं तो इट विल बिकम अ बफर जोन फॉर दी कैलामिटीज़. ठीक है, ये जो ग्रीन प्लांट्स अगर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि लगा रहे हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का एक बफर जोन बना सकता है ये ट्रीज़. ठीक है, ये चीज़ बोला जाता है कि इफ़ यू हैव ट्रीज़ और इफ़ यू हैव प्रॉपर प्लांट्स एट द एजेस ऑफ द रोड, एट द कॉर्नर्स ऑफ द रोड, तो इट प्लेज अ रोल ऑफ स्टॉपेज फॉर द पोल्यूशन फॉर द पीपल लिविंग इन द सिटीज़. ठीक है, सो इट प्लेज अ बफर जोन रोल फॉर रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन इन दैट एरिया. ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, दोनों की बात कर सकते हैं. सो बायोगैस से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं रेसिड्यूज से. दूसरा, ग्रीन कॉरिडोर की वजह से एक बफर जोन बना रहे हैं हम. ठीक है, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन से.
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इज़ अबाउट दिस, जिसके बारे में हमने बात किया था कि अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे ये लोग, ठीक है। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए दे विल यूज़ द वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स फॉर एयर वाटर नॉइस क्वालिटी चेक। मतलब जो द एनसीआर का रीजन है या जो हमारा उस प्रॉपर एनसीआर में आता है उसका एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, देन नॉइस क्वालिटी, सबको चेक करने के लिए ये एरियाज़ रूरल एंड अर्बन दोनों जगह पर ये लोग लैब टेस्टिंग कंटिन्यूसली करेंगे टू चेक कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं अब तक, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ द यमुना पोल्यूशन। सो टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ यमुना, ये रिपोर्ट किया गया था कि फॉर मेंटेनिंग द रिक्विसाइट एनवायरमेंटल फ्लो इन द रिवर डाउन स्ट्रीम ऑफ बैरेज ऑफ हथनी कुंड इन हरियाणा एंड ओखला इन दिल्ली, स्टेट शुड फॉलो अ रिकमेंडेशन ऑफ 2014 रिपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल कमेटी, जो कि हमारे वाटर सेक्रेटरी चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2014 में एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स बताए थे जिस फ्रॉम दैट वेज यू कैन सेव द डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ यमुना या यू कैन मेंटेन द प्रॉपर फ्लो ऑफ यमुना, ठीक है। तो दो एरियाज़ है यमुना फ्लो का, एक जो मैंने आप लोग को बताया हथनी कुंड ऑफ हरियाणा और एक है ओखला इन दिल्ली स्टेट। देन उसके बाद 2015 में एनजीटी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनको भी कंसिडर किया था अबाउट द इश्यूज ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट देयर इज इनफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग इन द रीजन रिवर्स टिल आगरा फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ रिवर्स इकोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। सो दिल्ली एनसीआर रीजन्स और ये सब जगह में वाटर प्रॉपरली फ्लो हो, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जगह पे प्रॉपर वाटर फ्लो के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स बोले हैं। जैसे कि एक इनिशिएटिव की बात की है दैट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लोटिंग वाटर ड्रोन्स और रोबोट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या होगा, दे विल ट्राई टू क्लीन द वाटर और कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द रिवर्स, जो डायरेक्ट कचरे फेंके जाते हैं पानी में। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रोन सिस्टम और विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोट, ये ऑटोनॉमस रोबोट एक बनाया जाएगा जिससे पानी में जो भी कचरे हैं, ठीक है, वो उसको ऊपर लाइक अ वैक्यूम काम करेगा हमारे पानी को क्लीन करने के लिए। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारे एनसीआर का जो प्लान है 2041 का उसमें यूज़ करने वाले हैं। सो हमने देखा अबाउट द बायो गैस प्लांट, देन हमने बफर जोन के लिए ग्रीन कॉरिडोर देखा, उसके बाद हमने यमुना रीजन मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ देखे, प्रॉपर डेटा से वो लोग चेक करते रहेंगे, एनालिस करेंगे। यमुना पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मिशन या जो मेथड अडॉप्ट किया दैट इज़ फ्लोटिंग वाटर ड्रोन्स। सो ये सब पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Okay, so the next article states China opens first road rail transport link to Indian Ocean. It connects the logistic lines of Singapore, Myanmar and China. So अगर हम प्रॉपर बात करें, so इंडिया के लेफ़्ट साइड अगर हम जाएंगे, इंडिया के वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्वादर पोर्ट एक एरिया है जहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू वो रोड लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सी लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की ईस्ट की तरफ आएंगे प्रॉपर इंडियन ओशन में, तो प्रॉपर इंडियन ओशन में भी चाइना ने अपना ट्रेड कॉरिडोर ओपन एक कर लिया है। ट्रेड कॉरिडोर में भी कैसा है, नॉट ओनली वाटर बट रेल एंड रोड, तीनों ही चीज़ों को कंसिडर करके दे हैव मेड अ प्रॉपर लिंक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना। सो ये आर्टिकल में हम देखेंगे कौन सी रीजन्स उन्होंने कनेक्ट किया है, ठीक है, चाइना के कौन से रीजन्स को किस रीजन मतलब म्यांमार के कौन से रीजन से कनेक्ट किया है, क्या रिपोर्ट हमें ये सब चीज़ें बता रही है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लॉन्च रेलवे लाइन विच इज़ फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर्स टू द की ऑफ कमर्शियल हब ऑफ वेस्टर्न चाइना। वेस्टर्न चाइना में एक जगह है दैट इज़ चेंगडू, ठीक है। सो म्यांमार के बॉर्डर से चेंगडू तक का कनेक्टिविटी जो है वो रेलवे के थ्रू है, ठीक है। म्यांमार बॉर्डर्स टू चेंगडू, दिस इज थ्रू द रेलवे लिंक बनाया है, ठीक है। दैट विल प्रोवाइड चाइना अ न्यू रोड रेल ट्रांसपोर्टेशन चैनल टू द इंडियन ओशन, ठीक है। सो इंडियन ओशन मतलब चेंगडू से म्यांमार बॉर्डर्स तक आएंगे, बॉर्डर्स के बाद से ये प्रॉपर एक रोड लिंक बनाया है उन्होंने। उसके बाद
वो लोग ने पहला अपना टेस्ट कार्गो भी किया था, जिस कार्गो को नाम उन्होंने दिया था चाइना म्यांमार न्यू पैसेज, ठीक है, जो रेलवे के बाद पूरा मतलब वाटर का यूज़ किया गया है. सो द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्वॉल्व्स अ सी रोड एंड रेल लिंक गुड्स फ्रॉम सिंगापुर रिच एट यांगन पोर्ट. सो सिंगापुर से जो गुड्स हैं वो कहाँ पहुँच रहे? चाइना में यांगन पोर्ट में पहुँचेंगे, वहाँ पे अराइव करेंगे बाय शिप, ठीक है, प्रॉपर मतलब वाटरवे से वो वहाँ पर अराइव किया जाएगा थ्रू दी अंडमान शिप सी का के यूज़, या फिर इंडियन हम बात कर सकते हैं इंडियन ओशन के यूज़ के थ्रू दे विल रीच देयर, ठीक है. और फिर वहाँ से जो है देन रोड जो हमने बताया था, ये रेलवे का यूज़ किया जाएगा फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर टू चेंगडू प्रोविंसेस, ठीक है, प्रॉपर रोड वे से, ठीक है. तो हमारा वाटर वे हो गया यहाँ पर और रोड वे हो गया यहाँ पर. सो दिस पैसेज कनेक्ट्स द लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ सिंगापुर, ठीक है, 3 जगह है, सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना. It is currently the most convenient land and sea channel linking Indian Ocean with the southwest China, connecting China, and it is assumed कि if they will use this route, the road route and the water route, it is approximately saving their 20 to 22 days traveling, जो usual journey लगता है उनको, ठीक है. सो ये जो नया उनका रेल एंड सी रूट यूज़ हुआ है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम. चाइना हैज़ ऑल्सो प्लान टू डेवलप अनदर पोर्ट, ठीक है, ये हमारा जो अभी बन चुका है और जिसका यूसेज स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में हमने देखा. देन चाइना और एक पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है म्यांमार में इन द स्टेट ऑफ राखिन स्टेट्स, ठीक है. ये प्रॉपर रेलवे लाइन के थ्रू यूज़ होगा, दैट इज़ फ्रॉम योयान, चाइना की एक जगह है योयान से जो म्यांमार की एक जगह है दैट इज़ क्योंगफुक, ठीक है, उस जगह को कनेक्ट करेगा थ्रू रेलवे. बट इसका जो काम है अभी फ़िलहाल प्रोग्रेस में नहीं है बिकॉज म्यांमार अपना फुल एग्रीमेंट इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है. सो ये हमारा हो गया ईस्टर्न पार्ट का बात किया. अब अगर थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में आ जाए तो जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न पार्ट में इट इज़ द ग्वादर पोर्ट. सो ग्वादर पोर्ट का मतलब यूज़ किया जा रहा है, चाइना यूज़ कर रहे हैं बाय हैविंग अ प्रॉपर एग्रीमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है. सो अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना जो है ग्वादर पोर्ट का कंस्ट्रक्शंस कर रहा है एंड उसको यूज़ भी कहीं ना कहीं उसको वो हम बोल सकते हैं कि राइट दिया कि यू कैन यूज़ इट, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो जो मलक्का स्ट्रेट से बाईपास होके दे विल गो टू ग्वादर पोर्ट, ठीक है. तो वेस्ट के तरफ पे वो एरिया वो लोग यूज़ कर रहे हैं और इस तरफ अगर हम बोले तो इस तरफ हमारा म्यांमार के साथ यूज़ हो रहा है. तो म्यांमार का एक ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ इरावडी, ठीक है, इरावडी वेबसाइट. तो म्यांमार का विच इज़ शोइंग दैट दिस इज़ द फर्स्ट लिंक ऑफ वेस्ट चाइना विद द इंडियन ओशन, ठीक है. द रेलवे लाइन करेंटली एंड्स द लिकान ऑफ चाइना साइड अपोजिट टू म्यांमार बॉर्डर एंड ट्रेड ओवर इट, ठीक है. तो वो मतलब ये इरावडी वेबसाइट पे ये पूरी चीज़ें दिखाई हैं. कहीं ना कहीं इसी को हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं चाइना का, कि हमने पहले सिर्फ देखा था कि वो चाइना इंडियन ओशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. बट राइट नाउ अगर हम बात करें, राइट नाउ यहाँ पर प्रॉपर सी रूट उन्होंने बनाया है. सो कहीं ना कहीं म्यांमार पे उनको पूरा कंट्रोल हो चुका है. मलक्का स्टेट के पास उनका कंट्रोल है. श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट फुल तरीके से उनके अंडर है एंड पाकिस्तान में अभी हमने ग्वादर पोर्ट देख ही लिया है. सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो चाइना एक्चुअली प्लान कर रहा था और उसी पे उसका काम चालू है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि इंडिया मतलब चाइना कौन से जगह से इंडियन ओशन से अब कनेक्ट हो पा रहा है डायरेक्टली. तो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. The next news states, or the next article states, concern over Afghanistan's membership in SAARC arise. Nature of new government in Kabul key to continue engagements. ठीक है. सो ये आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल सिंपली यही बोल रहा है कि सार्क की अगर हम मेंबर देखें, सबसे रीसेंट मेंबर जो है अफगानिस्तान बने थे. सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
कॉपरेशन, ठीक है। सो इसके मेंबर अफ़गानिस्तान भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अफ़गानिस्तान पे जो तालिबान का कंट्रोल है, सो सार्क में अफ़गानिस्तान का क्या रोल रहेगा, या सार्क में अफ़गानिस्तान कैसे अब काम करेगा, कैसे नेगोशिएशंस हम उनके साथ करेंगे। सो ये आर्टिकल ने वही चीज़ बताई है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्वाइटिंग द मेंबर कंट्रीज लाइज, अभी जो रिसेंट होने वाला है सार्क का मीटिंग, वो इस बार इस्लामाबाद में होने वाला है 21 में, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव मतलब इस्लामाबाद जहाँ से हो रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबको इनवाइट किया जाता है। Recently, after Tuesday's meeting in Doha between Indian ambassador Deepak Mittal and Taliban's Sher Mohammad Abbas Sheikh, it appears that South Bloc is not averse रिवाइजिंग इट्स पॉलिसी, मतलब अफगानिस्तान तालिबान अपनी पॉलिसीज चेंज करने की बात नहीं कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ इंडो पाकिस्तान पॉलिटिकल प्रॉब्लम एट क्रिएटिंग अ हर्डल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सार्क, क्योंकि मैंने जैसे बोला इस बार की जो मीटिंग है वो इस्लामाबाद में होने वाली है, दैट इज़ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान अगर इन्विटेशंस भेज रहा है तो, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ देखा गया कि सार्क में इंडिया और पाकिस्तान के व्यूज़ कभी नहीं मिलते, दे आर ऑलवेज वाइस वर्सा टू ईच अदर। तो ये एक इशू होने के बाद अब एक नई इशू आ चुकी है, दैट इज़ अफगानिस्तान। ये आर्टिकल के थ्रू हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट सार्क। सार्क है क्या, कब बना, अफगानिस्तान कब उसका पार्ट बना, ये सब थोड़ा जानेंगे। सो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इट वाज साइन अंडर अ चार्टर विच इज़ नोन एज द सार्क चार्टर, ठीक है। सार्क चार्टर विच वॉज साइंड इन ढाका बांग्लादेश, ठीक है, इन द ईयर, और ऑन 8 दिसंबर 1985 को हमारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है। सो एंड ये एग्रीमेंट्स अगर प्रॉपर अगर देखें कब राइज हुआ कि हमें ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो नवंबर 1980 को ये प्रॉपर ऐसा साउथ एशियन कंट्रीज ने एक अपनी तरफ से इंटरेस्ट राइज करवाया कि वी वांट अ प्रॉपर कम्युनिटी हमारे कंट्रीज़ का। सो आफ्टर कंसल्टेशन हमारे 7 कंट्रीज़ उसके मेंबर बने, ठीक है। कौन से 7 कंट्रीज़ थे, सो बांग्लादेश, भूटान, देन इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। ये लोग 7 कंट्री सबसे पहले बार आए 1985 में, इनकी पहला फॉर्मेशन बना। और इनका जो मतलब 1980 में ये क्वेश्चन उठा था, तो 1918 में ये क्वेश्चन जब उठा कि इंटरेस्ट उठा, तो तब ये 7 कंट्री साथ में आए। और ये सातों कंट्रीज़ का पहला मीट जो हुआ था दैट हैपेंड इन कोलंबो, श्रीलंका, ठीक है। कोलंबो में पहली मीट हुई थी इन अप्रैल 1981, सबसे पहली मीट ये सातों कंट्रीज़ की हुई थी। उसके बाद इनकी मीट्स होने लगी, ठीक है। फिर प्रॉपर ट्रीटी साइन हुई सार्क की, और फिर वे लोग का प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ। देन अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा सबसे न्यूएस्ट मेंबर है सार्क में। हमारा सार्क का जो मीटिंग हुआ था एनुअल मीटिंग 2005, दैट वाज द 13th समिट। उस समिट में सार्क बिकेम दी न्यू मेंबर ऑफ अफगानिस्तान बिकेम दी न्यू मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। और करेंटली अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स, तो करंट हेडक्वार्टर्स इज काठमांडू इज़ बेसिकली इन नेपाल। जो करंट सार्क का हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन नेपाल। सो ये कुछ सार्क का इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड था। सार्क का अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, या किस फ्रेमवर्क में हमारा सार्क कमिटी या सार्क समिट काम करता है। सो इनका जो बेसिस है काम करने का दैट इज सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफियरेंस। सो इनका जो कॉपरेशंस है जो भी है बाईलैटरल और मल्टीलैटरल कॉपरेशंस पे होता है। एंड मेंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, पहले 7 मेंबर्स थे और अब जाके 8 मेंबर्स हो गए। से इन टोटल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ये परमानेंट सार्क के मेंबर्स हैं। और हमारे कुछ 9 जो हैं वो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, मतलब जो सर्विलेंस का काम करते हैं कि अगर कुछ इशू हुआ थर्ड पार्टी बन के दे कैन कम। सो 9 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं हमारे। सो ये 9 ऑब्जर्वर्स कौन से हैं, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूएसए। ये 9 कंट्रीज़ हैं विच प्ले द रोल ऑफ ऑब्जर्वर्स इन दी सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ कॉपरेशन, किस किस फील्ड में दे हैव अ मल्टीलैटरल ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड इन सार्क। सो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
HRD, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देन उसके बाद एनवायरनमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, और फिर इकोनॉमिक ट्रेड्स, सोशल अफेयर्स, देन इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर, ये सब पर्सपेक्टिव में हमारा सार्क मेंबर्स का वर्किंग होता है बिटवीन दी कंट्रीज. नाउ इट कम्स टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क कि सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट वेलफेयर, the welfare of the countries. So promote welfare is one of the objective. Then economic growth is another objective of SARC. Then promote or we can say strengthen the collective self reliance, self independency. ठीक है, ये एक होता है. Then mutual trust, you should have mutual trust between the countries. Then active collaborations हो गए, helping the developing countries. ये सब कुछ principles हैं हमारे, कुछ objectives हैं सार्क समिट के वर्किंग के. ठीक है, अब हम आते हैं इनके मतलब मेन बॉडीज़ पे या प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है सार्क के. तो एक जो है हेड, जो है मीटिंग ऑफ द हेड्स या स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे यूजुअल एनुअल बेसिस में मीटिंग होता है. उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज. स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी क्या काम करता है, तो इनका जो ओवरऑल मॉनिटरिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिसोर्सेज को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, फाइनेंस को लेके, वो सब का डिसीजन इस बॉडी में होता है. द नेक्स्ट बॉडी इज द सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट बॉडी जो है 1987 में फॉर्म हुआ था काठमांडू में. इनका क्या रोल होता है, टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज़ ऑफ सार्क. अगर सार्क समिट के अंदर कुछ बोला गया है कि दे विल परफॉर्म एन एक्टिविटी, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेक्रेटरीट का काम होता है कि वो देखेगा. ठीक है, सो सार्क का ये फंक्शंस होते हैं. सार्क के कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसको हम SDF भी बोलते हैं. ये फंडिंग देता है, या फंडिंग सोशल सेक्टर्स में, जैसे अभी पैंडमिक टाइम में सिचुएशन में चाहिए था, तो सार्क ने बहुत सारे मतलब बहुत कंट्रीब्यूट किया टू द मेंबर्स ऑफ सार्क समिट. ठीक है, फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये इंडिया में लोकेटेड है. इट इज़ बेसिकली प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री टू दी मेंबर्स, हम बोल सकते हैं, टू ऑल दी कंट्रीज. सो एक नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से उनको डिग्रीज दी जाती है फॉर दी नॉलेज दे गेन इन इंडिया. फिर है हमारा साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है ये बांग्लादेश में है. इनका काम क्या होता है कि सार्क की कंट्रीज़ के बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन एनहांस करने का मेन काम इनका रहता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ सार्क बॉडी. सार्क का अगर हम वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देखें तो 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया जो है वो सार्क की कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है. फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सार्क के कंट्री में है. देन ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 3.8% की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सार्क की कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं. सो ये कुछ चीज़ें हैं अबाउट the SARC as in summit or as an organization. So now we'll move to the next news. That is, vaccine pioneer wins Raman Magsaysay Award. ठीक है, सो ये आर्टिकल अगर मैं बात करूँ, ये आर्टिकल क्यों आया था. सो हमारा जो अभी जो वैक्सीन सबको दिया जा रहा है, या फिर जो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने वैक्सीन के बारे में फर्स्ट थॉट लाया, जिन्होंने इन्वेंशन किया, या जो भी बोल सकते हैं, उनको जो है रेमन मेगासेस अवार्ड दिया जा रहा है ये साल. So a Bangladeshi vaccine scientist and a microfinance pioneer from Pakistan were among the 5 recipients of this year's Raman Magsaysay Award. So ये Raman Magsaysay जो अवार्ड है, ये इसको हम एक तरह से बोलते हैं कि जो नोबल प्राइज़ है, तो एशियन वर्जन ऑफ नोबल प्राइज़ है हमारा. It is regarded as the Asian version of Nobel Prize, which was announced on Tuesday, that is tomorrow. So apart from Dr. Firdausi Khadri, who is from Bangladesh, जो पाकिस्तान से जिनको मिला है उनका नाम है मोहम्मद अजमत साकिब, who is from पाकिस्तान. इनको छोड़ के और 3 जन हैं. एक है फिलिपानो फिशर, देन एक एनवायरमेंटलिस्ट है रॉबर्ट बैलन, और एक है अमेरिकन स्टीफन म्यूसी फॉर ह्यूमैनिटेरियन. सो ये 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है. डॉक्टर फिरदौसी खदरी, मोहम्मद अजमत साकिब, देन फिलिपिनो फिशर, रॉबर्ट बैलन एंड स्टीफन म्यूसी.
ये पांचों को दिया गया है फॉर दियर वर्क और फॉर दियर असिस्टेंस इन दी वी कैन से एज अ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टॉर्च बेयरर इन जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेशंस, या जो भी गिविंग दियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी. So Dr. Khadri, 70 years old, who has been doctorate from Liverpool University, UK, joined International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh. ठीक है, in 1988 he has joined this institute in 1988. Sorry, she, I'm really sorry. So Firdausi Khadri, she has joined it in 1988 and she was recognized for her passion and lifelong devotion for scientific profession award citation. ठीक है, तो ये साल का जो है ये पांचों जन को रामसे मेगासिस अवार्ड दिया जा रहा है. अब थोड़ा सा रामसे मेगासिस अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं, कब से स्टार्ट हुआ और क्या रीज़न है इसके देने का. सबसे पहले रामसे मेगासिस अवार्ड जो है 1957 से इसका प्रॉपर इनिशिएशन हुआ था, या प्रॉपर जो इस्टेब्लिश जो है 1957 से हुआ था, और इसको हम एशिया का हाईएस्ट ऑनर भी बोलते हैं. जैसे हमने बोला एशियाज़ नोबल प्राइज़, वैसे ही इट इज़ नोन एज द एशियाज़ हाईएस्ट ऑनर. और ये जो रामसे मेगासिस हैं, ही वॉज दी थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस. सो उनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है. सो रामसे मेगासिस इज द वॉज द थर्ड फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस. सो टिल 2009 ये एक ट्रेडिशनल था कि 5 कैटेगरीज में हम जो अवार्ड्स देंगे. सो गवर्नमेंट सर्विस हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, कम्युनिटी लीडरशिप हो गया, जर्नलिज्म हो गया, लिटरेचर, आर्ट, कम्युनिकेशन. इस बेसिस में 5 अवार्ड्स दिए जाते थे एवरी ईयर टिल 2009. हावेवर 2009 के बाद से जो हमारा रामसे मेगासिस अवार्ड फाउंडेशन है, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनमें होती हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं, उनको भी दे स्टार्टेड गिविंग अ प्रॉपर अवार्ड, मेडल्स एंड कैश प्राइजेस उनको भी देने लगे थे. एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज दैट रामसे मेगासिस इज़ द नोबल प्राइज़ फॉर एशियन कंट्री, एशिया के हिसाब से. सो ये अवार्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल को ही दिया जाता है, इट इज़ ऑल्सो गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में थोड़ा यूनिक वर्क या फिर सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल काम कर